بسم الله الرحمن الرحيم وهو معرب ومبني فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً. بات چل رہی تھی اسم کی تعریف کی گئی، اس کے بعد اس کے خاصے ذکر کیے گئے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب ایک مبنی. اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب اعراب سے بنا ہے، اعرب یعرب ظاہر کرنا. انی اعرب غایت الفرح، میں انتہائی خوشی کا کیا کر رہا ہوں، اظہار کر رہا ہوں. انی اعرب غایت الفرح، اعرب یعرب کیا کرنا، ظاہر کرنا. تو چونکہ معرب بھی معنی کی جو مقتضا ہیں، فاعلیت، مفعولیت، اضافت، اس کو کیا کر دیتا ہے، اعراب ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، معرب. معرب کے معنی آتے ہیں، معرب پر کیا آتا ہے، اعراب آتا ہے. اور اس اعراب سے معنی کا جو مقتضا ہے کیا، فاعلیت، مفعولیت، اضافت، وہ کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے معرب کو معرب ہے. مبنی بنا ہے بنا سے. بنا کے معنی بنانا، تعمیر کرنا. جب تعمیر ہو جاتی ہے تو وہ برقرار رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اس کے اندر تغیر وہ الٹتا پلٹتا نہیں ہے. وہ جب مکان تیار ہو جاتا ہے تو مبنی بنا ہے کس سے، بنا سے. بنا کا مطلب ہوا جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے. اس لیے مبنی کا مطلب ہوا کیا، برقرار رہنے والا، باقی رہنے والا. معرب باشد کے گد بار بار، مبنی باشد کے معنی برقرار. تو اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب کیا ہے، تو معرب میں دو باتیں ہونا چاہیے. فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ. معرب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ مرکب ہے، وہ مرکب ہے. ایک بات اس میں ترکیب ہونی چاہیے، وہ مرکب ہونا چاہیے. دوسرے لم یشبہ مبنی الاصل، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. تو مرکب میں کتنی چیزیں ہیں، یہ معرب میں کتنی چیزیں ہیں، دو باتیں. معرب میں کتنی چیزیں ہوئی، پہلی بات مرکب ہو، اور دوسری بات اصل کے ساتھ سمجھ رہے ہو نہیں. اس سے آسان تم کو کوئی دوسری کتاب نظر نہیں آ رہی. معرب میں کتنی باتیں ہو گئی، دو باتیں ہو گئی. کون کون، مرکب ہو، دوسرے سے مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اگر مرکب ہے، مرکب ہے پہلی شرط پائی جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ مبنی اصل کے ساتھ، تب وہ کیا ہوگا، معرب ہوگا. اب اگر مرکب ہی نہیں تو اب اس کو ذرا سا سمجھو. اب اس کو معرب
میں ذرا سا یہ بات سمجھ لوں کہ شے مرکب ہے یا نہیں، مرکب ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مرکب ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے ابھی رہنے دو، مرکب ہے یا مرکب نہیں ہے تو ایک بات، اور اگر مرکب ہے تو دو باتیں، مرکب ہے عامل کے ساتھ ہے یا نہیں، عامل کے ساتھ ہے یا نہیں، عامل کے ساتھ ہے یا غیر عامل کے ساتھ ہے، اگر غیر عامل کے ساتھ ہے تو دو باتیں، دو ہو گئی، اور اگر عامل کے ساتھ ہے تو پھر دو باتیں ہوں گی، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے یا مبنی اصل کے ساتھ مشابہت، کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4، مرکب ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ایک قسم، مرکب ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ایک قسم، اور اگر مرکب ہے تو عامل کے ساتھ ہے یا غیر عامل، اگر غیر عامل کے ساتھ ہے تو دوسری صورت، اور اگر عامل کے ساتھ ہے تو دو باتیں ہوں گی، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے یا نہیں، مبنی اصل کے ساتھ اگر مشابہت ہے تو ایک، اور نہیں ہے تو دو، تو 4 ہو گئے، کل 4 قسم ہو گئی نا۔ اب سمجھو کہ اگر مرکب ہی نہیں ہے، اگر زید تا سا زید بکر خالد، یہ ہے مرکب، مرکب ہے نہیں، تو اس کو کہیں گے مبنی، اس کو کہیں گے مبنی۔ غلام زید، غلام زید، غلام زیدن اور غلام زیدن میں کیا فرق ہے؟ غلام زیدن بھی مرکب ہے اور غلام زیدن بھی مرکب ہے، لیکن غلام زیدن جو مرکب ہے اس میں عامل نہیں، غلام کا میم ساکن ہے، زید دوسرا جز ہوا اس کا، تو غلام زید یہ مرکب ہے لیکن عامل کے ساتھ نہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ دوسرا، یہ بھی مفہوم۔ اور غلام زید، یہ غلام زید یہ مرکب ہے، اس میں عامل ہے، اور اس میں کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ رفع آتا یا تو فاعل پر یا مبتدا پر، ارے فاعل پر یا فاعل میں عامل ہوتا ہے، ارے فاعل میں عامل ہوتا ہے، پھر اب مبتدا میں عامل ہوتا ہے ابتدا، اس پر رفع آنا دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا کوئی نہ کوئی عامل ہے، تو جب عامل آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو پھر مبنی کے ساتھ مشابہت ہے، مبنی اصل کے ساتھ یا نہیں وہ دیکھیں گے، لیکن یہاں جو مثال بنے گی وہ کون سی مثال بنے گی؟ غلام زید۔ اور یہ بات سمجھ میں نہ کہ مرکب ہے یا نہیں، اگر مرکب نہیں ہے تو مبنی، ایک قسم ہو گئی، جیسے زید بکر خالد پڑھا، اور اگر مرکب ہے تو عامل کے ساتھ ہے یا نہیں، غلام زید مرکب ہے عامل کے ساتھ، غلام زید میم کو کیا کہیں گے؟ غلام زید، میم کو سکون کے ساتھ بولیں گے، غلام زید مرکب ہے عامل کے ساتھ نہیں، مرکب ہے لیکن عامل کے ساتھ یہ بھی مبنی ہوگا، اور یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اب دیکھو آگے، مرکب تو ہے لیکن عامل کے ساتھ ہے، مرکب تو ہے عامل کے ساتھ ہے، تو پھر دیکھیں گے مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یا کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ جیسے جا ہاؤلائی، جا مرکب ہے، کس کے ساتھ ہے؟ عامل کے ساتھ ہے، ہاؤلا مشابہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ مبنی اصل کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ 3 صورتیں کس کے ہو جائیں گی؟ جا زیدن، جا زیدن، جا عامل ہے، یہ مرکب ہے کس کے ساتھ؟ عامل کے ساتھ، اور زید مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک صورت کس کی ہو گئی؟ مرکب کی کون صورت ہو گئی؟ مرکب ہو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا۔ اب باقی 3 صورتیں جو ہوئی، 3 صورتیں کون کو؟ مرکب نہ ہو یا غیر عامل کے ساتھ مرکب ہو یا عامل کے ساتھ مرکب ہو لیکن مبنی اصل کے ساتھ مشابہت، یہ 3 صورتیں کون کی ہو جائیں گی؟ مبنی کی۔ ایک صورت کس کی ہو جائے گی؟ مرکب کی۔ پہلی بات
मुरक्कब हो, वो क्या हो? मुरक्कब हो। और मबनी असल के साथ मुरक्कब हो, किसके साथ? आमिल के साथ मुरक्कब हो। और मुशाबहत न, मबनी असल के साथ मुशाबहत न रखता हो। जैसे काम ज़ैद, जा ज़ैद, ज़ैद और काम दोनों क्या है? ये यहाँ मुरक्कब है, तो ज़ैद किसके साथ है? आमिल के साथ। अज़ैद इसको क्या कहेंगे? खुलासा ये हुआ कि मुरक्कब की तारीफ क्या हुई? मुरक्कब, मुरक्कब हो मबनी असल के साथ मुशाबहत। मबनी असल कितनी चीज़ें हैं? तीन। कौन कौन? मुरक्कब ना हो, मबनी असल कितनी चीज़ें हैं? फेल मादी, खबर हाजिर, मारूफ, तमाम हुरूफ। तमाम हुरूफ ये क्या है? मबनी। और मुशाबहत से मुराद है ख़ास मुशाबहत। वो क्या है? वो ख़ास मुशाबहत। ख़ास मुशाबहत क्या है? ये मुहताज होने में मुशाबहत। अरे मुहताज होने में मुशाबहत जैसे हर्फ का माना खुद समझ में नहीं आता है, हर्फ अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मुहताज है। ये एहतियाज जो है, ये एहतियाज में मुशाबहत है। ये एहतियाज जो है, इस एहतियाज में क्या हो? मुशाबहत। आम मुशाबहत ना है, मुराद नहीं है, बल्कि क्या है? ये खास मुशाबहत। खास खास मुशाबहत क्या है? वो एहतियाज, मुहताज होने में मुशाबहत। कैसे? कि हर्फ अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मुहताज है। इसी तरह इसमें इशारा मुशारुन अलैह का मुहताज है। इसमें मौसूल सिला का क्या है? ये मुहताज है। तो इस एहतियाज में क्या हो? ये मुशाबहत हो। तो इसमें मौसूल मुशाबहत रखता है किसके साथ? हर्फ के साथ। जिस तरह हर्फ अपना माना बताने में दूसरी चीज़ का क्या है? ये मुहताज है। इसी तरीके से इसमें इशारा ज़मीर मर्जे का क्या है? ये मुहताज है। तो जिस तरह हर्फ मुहताज है, इस तरह ये भी मुहताज हुआ। तो एहतियाज होने में क्या हो? मुशाबहत हो। अल हासिल एक हैगा मोरब, एक मबनी। मोरब तो वो हो गया कि जो मुरक्कब हो और मबनी असल के साथ मुशाबहत रखता हो। और मुरक्कब का मतलब बता दिया गया कि वो मुरक्कब हो अपने आमिल के साथ और असल के साथ मुशाबहत न रखता हो। जैसे जा ज़ैदुन, ये मुरक्कब है ज़ैद अपने आमिल के साथ, लेकिन ज़ैद मबनी असल के साथ मुशाबहत नहीं रखता है। तो ये हो जाएगा मोरब। और अगर इसके अलावा कोई सूरत हुई कि मुरक्कब ही ना हो, या मुरक्कब हो लेकिन आमिल के साथ ना हो, या मुरक्कब तो हो आमिल के साथ लेकिन मुशाबहत ना रखता हो, तो ये सूरतें जो हो जाएंगी वो किसकी? मबनी की। कुछ आई बात समझ में? तो फल मोरब, अब मोरब की तारीफ कर रहे हैं तो अल मुरक्कब समझ गया नहीं? जो मुरक्कब होगा वो अलिफ लाम अल्लज़ी के माने में अल्लज़ी युरक्कब, यानी मोरब वो मुरक्कब होगा। अल्लज़ी युशबे लम युशबे दोनों पढ़ो, दोनों सूरत में वही होगा, माना मुशाबहत नहीं रखता हो। जो मुशाबहत नहीं रखता हो किसके साथ? हम मबनी असल कितनी चीज़ें हैं? कौन कौन? इनमें से किसी के साथ वो मुशाबहत न रखता हो। मुशाबहत से मुराद है खास मुशाबहत, वरना मुशाबहत तो रखता है। मोरब भी लफ्ज़ है, मबनी भी लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ होने में तो क्या रखता है वो? तो जैसे मबनी है, इसको भी हम क्या कह दे? मबनी। ऐसा तो नहीं है। मुशाबहत से यह मुराद है खास मुशाबहत क्या है? अरे क्या है? एहतियाज। एहतियाज किन में? मोहताज होने में। जिस तरह हर्फ अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज है, इसी तरह से इशारा किसका मोहताज है? व हुक्मुहु अन यख्तलिफ आखिर। हुक्म मन अल असरुल मुरत्तब अला शै। हुक्म का मतलब शै पर जो असर मुरत्तब होगा उसको क्या कह देंगे? हुक्म। अब मोरब है तो मोरब का असर क्या मुरत्तब होगा? अरे मोरब है तो मोरब का असर
क्या मुरत्तब होगा, तो हुक्म किसको कहेंगे? अल अल अतरुल मुरत्तब वाला शै, शै पर जो अतर मुरत्तब होगा उसको क्या कहेंगे? अब मोरब है तो मोरब का अथर क्या मुरत्तब होगा? तो अन यख्तलिफा आखिरुहु, मोरब का आखिर क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ हो जाएगा। मोरब का आखिर बदल जाएगा बेख्तिलाफिल अवामिल, अवामिल के इख्तिलाफ से। तो क्या हुआ? मोरब का हुक्म क्या हुआ? मोरब का असर क्या होगा? इसका आखिर बदल जाएगा आमिल के बदल जाने से। जो है अज़ैदुन रअयतु मररतु आमिल बदलता गया, इराब बदलता गया, इराब भी अखीर भी क्या होता रहा, उसका इराब बदलता रहा, अवामिल बदलता रहा, अखीर भी बदलता रहा। तो वो है, तो उसका हुक्म ये है कि उसका आखिर बदलता रहे। किसके इख्तलाफ से? अवामिल के इख्तिलाफ से। हुआ कि चंद अवामिल बदलेगा तब वो क्या होगा, वो बदलेगा, वरना नहीं। तो अवामिल एक आमिल नहीं बल्कि क्या, चंद अवामिल के बदलने से उसका आखिर क्या हो, ये ना तर्जुमा हुआ। मोरब वो है कि जिसका आखिर चंद अवामिल के बदलने से क्या हो जाए, बदल जाए। हालांकि चंद आमिल नहीं बल्कि एक आमिल दाखिल हो गए। तो अब आप क्या कहेंगे कि अवामिल पर अलिफ लाम क्या है? ये होंगे नहीं, अलिफ लाम जिन्स का है। अलिफ लाम किसका है? जिन्स का है। तो अलिफ लाम जिन्स का जब जमा के ऊपर दाखिल हो, या कह दो अलिफ लाम जब जमा के ऊपर दाखिल हो तो उसकी जमीयत बातिल हो जाती है। तो उसकी जमीयत क्या हो जाती है? अलिफ लाम जब क्या हो, जमा के ऊपर हो। राय ने बात समझ में? अलिफ लाम जब जमा के ऊपर दाखिल हो तो उसकी जमीयत बातिल हो जाती है। मुराद उससे होता है सिर्फ जिन्स। ये एक फर्द के ज़िम्न में उसका तहक़्क़ुक़ हो जाएगा। क्या होगा? अलिफ लाम जब क्या होगी, बातिल हो जाएगी। सिर्फ वहाँ जिन्स बस आमिल मुतलक आमिल मुराद। तो उसका हुक्म यह है कि उसका आखिर बदल जाए। कैसे? अवामिल के बदलने से, लफ्ज़न औ तक़दीरन, हाँ वो लफ्ज़न हो या लफ्ज़न का मतलब है जिसका तलफ़्फ़ुज़ हो, और तक़दीरन का मतलब जिसका तलफ़्फ़ुज़, यानी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन व मररतु, इसका तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है और उसका तलफ़्फ़ुज़ समझ रहा है ना फरिश्ता। और तक़दीरन उसका तलफ़्फ़ुज़ जैसे जा रअयतु व मररतु बिमूसा, ये तक़दीरन हो। खा वो इख्तिलाफ क्या हो, लफ्ज़न हो या इख्तिलाफ तक़दीरन हो। अब समझो कि लफ्ज़न और तक़दीरन, लफ्ज़न और तक़दीरन ये मंसूब क्यों है? लफ्ज़न और तक़दीरन क्यों है? तो या तो ये यख्तलिफ़ा आखिरुहु, आखिरुहु जो उसका फ़ाइल है, किसका? और उससे वो जो उसमें जो ज़मीर है हु, उस ज़मीर से क्या है ये? तमीज़। वो ज़मीर मुमय्यज़ और ये जो है वो तमीज़ क्या होता है? मंसूब होता है। एक बात हो गई क्या? आखिर मोरब का, उस मोरब का क्या हो? आखिर बदले। इस हाल में या इस तौर पर कि क्या हो, वो लफ्ज़ी हो या ये के। तो हुक्महु में ये आखिरुहु में जो हा ज़मीर है, उस ज़मीर से लफ्ज़न और तक़दीरन ये क्या है? ये तमीज़ है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि असल में
मुज़ाफ महज़ूफ है, ये है मुज़ाफ है। असल में था बे इख्तिलाफिल अवामिल इख्तिलाफ लफ्ज़िय्यन और इख्तिलाफ लफ्ज़िन और तक़दीर, इख्तिलाफा लफ्ज़िन और तक़दीर, ये था। ये मफ़ूल मुतलक था। क्या था? मुतलक। मफ़ूल मुतलक में मुज़ाफ को हज़फ कर दिया गया और मुज़ाफ अलैह को उसकी जगह पर रख दिया गया। ये क्या था? ये मुज़ाफ इसका महज़ूफ है, असल में था इख्तिलाफ लफ्ज़ी और तक़दीर। मुज़ाफ को क्या कर दिया गया? हज़फ कर दिया गया और मुज़ाफ अलैह को उसकी जगह पर रख दिया गया। तो क्या हो गया वो? लफ्ज़न और तक़दीरन। दूसरी वजह समझ में आने गई। तीसरी वजह क्या है? दो वजह तो सामने आ गई और तीसरी वजह में कहेंगे कि असल में ये था लफ्ज़न औ तक़दीरन, ऐ सवाउन कान लफ्ज़ियन औ तक़दीरन। सवाउन कान बराबर है, खा तक़दीरन लफ्ज़न हो या ये के तक़दीरन। तो असल में था सवाउन कान लफ्ज़ियन औ लफ्ज़न तक़दीरन नहीं करेंगे, इसलिए कि लफ्ज़न और तक़दीरन तो काना की खबर हो। क्या हो जाए? काना की खबर। और है ये मस्दर, मस्दर का हमल नहीं होता। अगर मस्दर का हमल नहीं होता तो क्या कह देंगे? लफ्ज़ियन औ तक़दीरन। लफ्ज़ियन फिर उसको तख़फ़ीफ़ करके क्या कर दिया गया? लफ्ज़न। और फिर तक़दीर और काना को क्या कर दिया गया? हज़फ करके इसको अला हाले ही छोड़ दिया गया। लफ्ज़न और आ रही बात समझ में ना? तो इसके मंसूब कितनी जगह आएगा? ये आज एक जगह बता दिया, अब इसके बाद दोबारा इस पर बहस नहीं होगी। पहली वजह आखिर में जो ज़मीर है उससे क्या है? ये तमीज़ है। और दूसरी वजह इसका मुज़ाफ क्या है? ये मौजूद है। असल में था इख्तिलाफ लफ्ज़ी और तक़दीरी। मुज़ाफ को क्या कर दिया गया? हज़फ कर दिया था, मुज़ाफ अलैह को उसकी जगह पर कर दिया गया। तीसरी वजह यह है सवाउन कान लफ्ज़ियन और लफ्ज़ियन मानेंगे, लफ्ज़न नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर लफ्ज़न कह दो तो ये काना की खबर हो गया। यह है मस्दर, मस्दर का हमल नहीं होता। इसलिए कि था असल में ये लफ्ज़ियन और तक़दीर, फिर इसमें तख़फ़ीफ़ करके इसको लफ्ज़न और तक़दीर कर दिया। फिर काना को क्या कर दिया गया? आगे वल इराब। वल अब इराब की तारीफ कर रहे हैं। इराब क्या है? मख्तलफ़ा, वो शय है, वो चीज़ है। मख्तलफ़ा आखिरुहु, जिसका आखिर उस एराब की वजह से क्या रहे? बदलता रहे। एराब क्या है? माँ वो शय है नहीं, माँ मौसूला भी हो सकता है, माँ मौसूफा भी। माँ मौसूला हो तो कहेंगे अल्लज़ी, अल एराब अल्लज़ी इख्तलफ़ा। और अगर मौसूफा हो तो क्या कह देंगे? शैउन, अल एराब शैउन इख्तलफ़ा आखिरुहु, ऐसी शय है जिसका आखिर उसकी वजह से। तो माँ मौसूफा और माँ मौसूला लिखा हुआ है तो मौसूफा की सूरत में मौसूल निकाल लेंगे और मौसूफा की सूरत में शैउन निकाल लेंगे। जो मौसूल बन जाएगा बाद में उसकी क्या बन जाएगी? सिफत बन जाएगी। और मौसूल है तो जो मौसूल होगा बाद वाला उसका सिला बन जाएगा। एराब वो है कि जिसकी वजह से, जिस एराब की वजह से, उसकी शय की वजह से। एराब वो शय है जिस शय की वजह से। एराब वो चीज़ है जिस चीज़ की वजह से मुरब का आखिर क्या होता रहे? बदलता रहे। क्यों बदलता रहेगा? ताकि ये बदलना उस पर पै दर पै जो मानी आने वाले हैं, पै दर पै जो उस पर मानी आ रहे हैं, वो एराब उस मानी पर क्या करेगा? दलालत करेगा। मुरब का आखिर क्या होगा? बदलता रहेगा। एराब वो है जिसकी वजह से मुरब का आखिर क्या रहे? बदलता रहे। क्यों बदलता रहेगा? कि उस मुरब पर जो पै दर पै मानी आ रहे हैं,
पै दर पै मानी आ रहे हैं, उन मानी का पता किससे चल जाएगा? इराब से चल जाएगा। रफा है तो फाइलियत, नसब है तो और जड़ है तो इराब क्या? इराब किसको कहेंगे? इराब वो है कि जिसकी वजह से उसका आखिर, इराब वो है जिसकी वजह से उसका आखिर क्या रहे? बदलता रहे। लियदुल्ला अलल मानिल मुअतबरती अलैहि, ताकि दलालत करे उन मानी पर जो मानी उन पर पै दर पै आ रहे। मुअतबरा इसमें फाइल भी हो सकता है और मुअतबरा इसमें मफूल भी हो सकता है। इसमें फाइल हो तो पै दर पै आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ रहे। अब मुअतबरा हो तो जो लाए जा रहे हैं, पै दर पै लाए जा रहे हैं। मुअतबरा इसमें फाइल ही पढ़ो, ये ज़्यादा है, अक़रब इला सवाब है। लियदुल्ला अलल मानी मुअतबरती अलैहि, ताकि वो दलालत करे किस पर? मानी पर जो मानी पर आ रहे हैं, इराब उस पर क्या कर देगा? दलालत कर देगा। तो इराब को समझ गए अच्छी तरह से। अब इराब के अनवा उसके अनवा, किसके अनवा? इराब के अनवा। नौ कहते हैं जिसके तहत अफराद हो, नौ कुल्ली जाती है जिसके तहत क्या हो? अफराद हो। तो हर इसके जो नौ है, हर नौ के तहत क्या है? ये अफराद है। रफ़ा है तो पेश और अलिफ और वाव। रफ़ा है, रफ़ा पर दलालत करने वाले कौन कौन हैं? पेश, अलिफ, वाव। नसब पर दलालत करने वाले ज़बर और या माक़बल मकसूर भी, या माक़बल मकसूर, या माक़बल मफ्तू मकसूर नहीं, या माक़बल मफ्तू या माक़बल मकसूर भी। अजर में दलालत करने वाले ज़ेर है और या है, ज़ेर है या है, या माक़बल मकसूर भी। या माक़बल मजरूर भी, मफ्तू भी है। या माक़बल रअयतु रजुलैन मररतु बि रजुलैन। तो इसके अनवा, इसके अनवा जमा है किसकी? नौ की। नौ कहेंगे किसको? जिसके तहत अफराद हो, जिसके तहत क्या हो? अफराद हो। तो चूँकि रफ़ा के तहत भी है वाव अलिफ, ये वाव और अलिफ पेश किसके तहत? रफ़ा के तहत। ऐसे नसब के तहत या अलिफ है, नसब के तहत क्या है? ये अलिफ भी है। जैसे अबाक अलिफ है और या माक़बल मफ्तूह है, या माक़बल है। ऐसे ही नसब के जर के साथ भी अलिफ या कसरा है, या है, या माक़बल मफ्तूह, या माक़बल मफ्तूह, ये सब अनवा हो गए। इसलिए इसको क्या कह दिया? ताबीर कर दिया अनवा से। किसे ताबीर कर दिया? अनवा से। रफ़उन, नस्बुन व जर। एक है रफ़ा नसब जर, एक है ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन, और एक है ज़म्मा फ़तहा कसरा। तीन चीज़ें हो गई। कौन कौन? रफ़ा नसब जर। कितनी चीज़ें हो गई? तीन। कौन कौन? रफ़ा नसब जर। ये मोरब के इराब को कहेंगे। मोरब के इराब को क्या कहेंगे? ये ख़ास है मोरब के साथ। कौन कौन? ये ख़ास है मोरब के साथ। ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन, ये ख़ास है मबनी के साथ। ये ख़ास है किसके साथ? मबनी के साथ। और ज़म्मा ता के साथ, ज़म्मा फ़तहा कसरा, ये दोनों में इस्तेमाल है। ये दोनों में क्या है? ये इस्तेमाल है। तो क्या कह दिया गया? इसके अनवा क्या हो गए? रफ़ा नसब जर। रफ़ा किस में इस्तेमाल होगा? अरे रफ़ा किस में इस्तेमाल होगा? मोरब में। और नसब किस में? जर भी मोरब में। और ज़म्मुन फ़त्हुन कसरुन, ये किस में? मबनी के साथ खास है। और ज़म्मा ता के साथ, ज़म्मतुन फ़तहतुन कसरतुन, ये फर्रफ़ु
علم الفاعلیت والنصب والجر. اب یہاں سے غدن من كان له سوال و اعتراض فليرفع وليدع وليتكلم. المعتمد علی کا مطلب کیا ہے؟ علیہ کہاں پر علیہ کا مرجع؟ لیدل علی المعنی المعتبرہ نہیں مختلفہ. اس کے بعد